آج امام احمد رضا کانفرنس سے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کر کے پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اگر مزدوری بھی کرنی پڑے تو کرو لیکن پڑھاؤ، اگر مٹی بھی کاٹنی پڑے تو کاٹو لیکن پڑھاؤ۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ میری قوم کا نوجوان بیچا جا رہا ہے۔ نوجوان کی قیمت ایک ہیرو ہونڈا، نوجوان کی قیمت 50,000 روپیہ ہے، نوجوان کی قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ وہ باپ کیسا جو اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے، وہ بھائی کیسا جو اپنے بھائی کو بیچ رہا ہے۔ ارے اگر تیرا ضمیر زندہ ہے، اگر تو نے اپنا شعور بیچا نہیں ہے، اگر تیرے سینے میں چمڑے کا دل ہے، پتھر کی مورت نہیں ہے، تو اپنے دل کی آواز سن۔ جب رات کی تنہائیوں میں یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی باپ کی غربت کا رونا روتی ہیں، اور جو دن جوانی کے سسرال میں گزارنے کے تھے، باپ کی غربت کی وجہ سے وہ بیٹیاں اپنے باپ کے کندھے پر جنازے کی طرح سڑ رہی ہے۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، ہیرو ہونڈا دے سکتا تھا۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، 50,000 روپیے میں داماد خرید سکتا، تو آج میرے ہاتھ سادہ نہیں ہوتے بلکہ میرے ہاتھ بھی مہدیوں سے لال ہو گئے ہوتے۔ لیکن آج میری قوم کا نوجوان بک رہا ہے۔ نوجوانوں، تم بکنے ہی کے لیے آئے ہو، اور تم تو پہلے بھی بک چکے ہو، اب بھی بکو گے، لیکن خدا کے لیے سسرال پہ مت بکو، سسرال پہ مت بکو۔ ارے بکنا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال پہ بکو۔ جب کربلا والے فاطمہ کے لال پہ بکو گے، تیرا بھی بازو اسلام کے لیے تڑپے گا، تیری بھی جوانی تڑپے گی، تیرا بھی بچپنا تڑپے گا۔ دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، زمانہ کہے گی لاشیں بکھری ہے، کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے، کوئی کہے گا سینہ چاک ہو گیا ہے، کوئی کہے گا بازو جدا ہو گیا ہے، کوئی کہے گا گردن کٹ گئی ہے، لیکن قرآن پکار کے کہے گا ارے اسے مردہ مت کہو، جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اسلام کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے۔ اس لیے یہ چند روز کی زندگی بزدل کی طرح مت گزارو، امام حسین کا غلام بن کر گزارو۔ لیکن آج نماز کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے صاحب، جھگڑا تو میرے ہی یہاں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا لوگ مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، پھر دو دو تین تین جماعت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں صاحب؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ارے بولیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے، گندی بات ہے۔ تو یہ جھگڑا ہم سے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا میں امام حسین سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک طرف یزید دی فوج کے 22,000 سپاہی، اور دوسری طرف امام حسین کے خیمہ کے 72 نمازی۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو حسین مانتے تھے، یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جو نبی امام حسین کے نانا جان ہیں۔ پھر یہ کربلا میں دو جماعت کیوں؟ یا امام، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، قبلہ ایک، نبی ایک،
नमाज का तरीका एक, जो रुकू में तस्बीह आप पढ़े वही रुकू में तस्बीह यजीद पढ़े, सजदे में जो तस्बीह आप पढ़े सजदे में वही तस्बीह यजीद पढ़े, जैसा सजदा आप करें वैसा ही सजदा यजीद करे, जैसा कयाम आप करें वैसा ही कयाम यजीद करे, जैसा रुकू आप करें वैसा ही रुकू यजीद करे। इमाम जहां लंबी जमात हो, जहां बड़ी जमात हो, वहां आपको जाकर नमाज पढ़ लेना चाहिए था। आपने ये अलग जमात क्यों की गा? आपने 72 की अलग जमात क्यों की? मेरे इमाम फरमाते, अरे नादान, लंबी जमात देखकर मत जा, बड़ी जमात देखकर मत जा, नमाजियों की कसरत देख के मत जा, नमाजियों की तादाद देख के मत जा, जमात देखकर मत जा, इमाम देख के जा, इमाम देख के जा। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बांध के खड़ा हो जा, और अगर इमाम मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के वापस हो जा। नमाज वफादार के पीछे होगी, मुस्तफा के गद्दार के पीछे नहीं होगी। अच्छा एक बात बोलिए, सलमान रुश्दी से आपका झगड़ा है? अरे बोलिए ना, किस बात का? आपका खेत जोता है, आपकी जमीन हड़पा है, आपका मालो दौलत लिया है, झगड़ा है किस बात का? आप कहेंगे उसने एक ऐसी किताब लिख दी है जिससे मेरे नबी की तौहीन हुई। आपने वो किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने उस किताब को देखा? नहीं देखा। आपने अखबारात और दिगर जराए अबलाग से सुन लिया कि उसने ऐसा लिखा है, तो आपके दिल में नबी का इश्क तूफान भरकर उठा और आपने तय कर लिया मिल जाए तो गर्दन काट दो। एक सलमान रुश्दी लंदन में बैठा है तो उसके लिए आप इतना प्लान बनाए बैठे हो। यहां कितने सलमान रुश्दी ऐसे हैं जो रात दिन मुस्तफा को गालियां दे रहे हैं, माज़अल्लाह। आओ जरा करीब मेरे नौजवानों, नमाज से दूर जाने वालों, मां बहने तुम भी कान खोलकर सुन लो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो तुमने बनाई है, इसीलिए ना कि इसमें रहोगे, बोलो बोलो, इसीलिए ना कि इस बिल्डिंग में रहोगे, इस मकान में रहोगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटा धक्का मार के बाहर करता है, निकालो जल्दी करो। बीवी रोते भी रहती है, कहती है जल्दी बाहर निकालो। मां रोती भी है, कहती है जल्दी बाहर करो। अभी जो लू चल रही है, अगर इस मौसम में इंतकाल हो जाए किसी का, तो ये भी नहीं सोचा जाएगा कि सारे रिश्तेदारों को खबर कर लो, बल्कि यह होगा कि रिश्तेदारों को बाद में खबर करना, पहले कब्र जल्दी खुदवा लो, कफन जल्दी मंगा लो, गुस्ल जल्दी करा लो, कब्रिस्तान जल्दी इन्हें पहुंचा लो, मट्टी देकर जल्दी घर वापस आ जाओ, वरना तुम्हें भी लू लग जाएगी। इसलिए कि इस कदर तपिश है। ऐसा क्यों? मकान बनाया था रहने के लिए, बिल्डिंग बनाई थी रहने के लिए, ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिस बिल्डिंग को रहने के लिए बनाया था, आज उसी बिल्डिंग से धक्के मार के निकाला जा रहा है। वो निकाल रही है जिसने जिंदगी निभाने का वादा की थी, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बेटा है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना भाई है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बाप है। निकल जा, देर मत कर। आइए चलिए, नमाज से दूर जाने वालों, इस वाक़े को सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कल तुम फजर से नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, नमाज के पाबंद होगे या नहीं होगे। मदीने तिगबा में एक ज़ईफा, एक मजबूर बुढ़िया औरत जा रही है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में तेल लिगे हुए। बुढ़िया की ज़ईफी का आलम ये कि आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है, गुर्बत का आलम ये कि पैरों में चप्पल नहीं है। ज़ईफा जा रही, सूरज डूब रहा है, हल्का अंधेरा आ गया। ज़ईफा जब चलने लगी तो ठोकर लग गई, ठोकर लगी तो ज़ईफा जमीन पे गिर गई। जब ज़ईफा जमीन पे गिरी तो हाथ से कटोरा छूट गया। जब कटोरा जमीन पे गिरा तो जमीन बुढ़िया का तेल पी गई। जब जमीन तेल पी गई तो बुढ़िया वहां बैठ के दुआ नहीं करती कि अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे कि जमीन तेल दे दे।
बल्कि बुढ़िया सीधे उठी अमीरुल मोमिनीन सैयदुल आबिदीन सैयदना फारूक आजम की बारगाह में आई। आकर के बुढ़िया फरियाद पेश करती है, या अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत देखिए, या अमीरुल मोमिनीन मेरी ज़ईफ़ी देखिए, ए अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत का आलम ये कि पैरों में चप्पल भी नहीं, या अमीरुल मोमिनीन मेरी मजबूरी का आलम ये कि मेरी आंखों में बिनाई भी नहीं, या अमीरुल मोमिनीन मैं तेल लेकर आ रही थी, मुझे ठोकर लग गई, मेरा तेल जमीन पे गिर गया और जमीन मेरा तेल पी गई। या अमीरुल मोमिनीन आप जमीन को हुक्म दे दीजिए कि जमीन मेरा तेल वापस कर दे, आप जमीन को ऑर्डर दीजिए कि जमीन मेरा तेल वापस कर दे। है कोई माई का लाल जो धरती के कलेजे से तेल निकाल दे? है कोई माई का लाल जो जमीन की छाती से तेल निकाल दे? सैयदना फारूक आजम ने जमीन के नाम हुक्मनामा जारी फरमाया, ए जमीन तूने एक मजलूम पर जुल्म की गाहे, ए जमीन तूने एक ज़ईफ़ा पे जुल्म की गाहे, ए जमीन उमर तुम्हें हुक्म देता है कि इस ज़ईफ़ा का तेल वापस कर दे। सुभान अल्लाह, और जोर से और तड़प के, ए जमीन इस ज़ईफ़ा का तेल वापस कर दे। ए जमीन याद रख, अगर तूने तेल वापस नहीं किया तो याद रख, ए जमीन अगर तूने तेल नहीं लौटाया तो याद रख, कल तेरे सीने में उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हुक्मनामा पहुंचा है, तारीख गवाह है, धरती अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ कर तेल उबलना शुरू कर दी। गोया जमीन ने अपने कलेजे से तेल वापस करके ये बता दिया, ए अमीरुल मोमिनीन मैं पिया हुआ तेल वापस कर सकती हूं, लेकिन अपने सीने में बेनमाजी को दफन होना पसंद नहीं कर सकती। जरा गौर करो, अगर कब्र ने तुझे वापस फेंक दिया तब किस बिल्डिंग में जाओगे? अगर जमीन ने वापस लौटा दिया तो किस हवेली में रहोगे? इसलिए नौजवानों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में है कोई? अच्छा, इसके बाद में थोड़ी देर के बाद आपका इम्तिहान लो। आज तो अजीबो गरीब आलम है। हजरत अल्लामा फकीह असर मुफ्ती उस्मान साहब किबला के यहाँ लोग आते हैं, हजरत एक ऐसा तावीज दे दीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात माने। देखिए ना, शादी से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सारी बात मानता था, शादी के बाद तो मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं। जब सुनता है तो अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने साले की, हम लोगों की एक नहीं मानता है। कोई तावीज दे दीजिए। अल्लामा ज़रूल कादरी साहब ने भी वकालत कर दी, हाँ हजरत एक तावीज दे दीजिए। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, आज तो बड़ा अजीब व गरीब हाल है नौजवानों का। शादी से पहले आज का नौजवान अपने अब्बा को अब्बा बोल लेता है, शादी के बाद तो अब्बा को अब्बा कहने में भी नौजवानों को शर्म आती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, है ना ऐसा? शादी से पहले अम्मा को अम्मा बोल लेता था, शादी के बाद अम्मा को अम्मा कहने में शर्म आती। लेकिन यही नौजवान जब अपनी ससुराल जाता है तो अपने ससुर महाराज को अब्बू जान कह के इतना जोर से सलाम करता है कि मोहल्ले के सभी लोग जान जाते हैं कि फलाने का दामाद आ गया है। मौलाना ज़रूल कादरी कहने लगे कि फलाने का दामाद आता है तो 6-6 महीना ससुराल में रहता है। मैंने कहा क्या कीजिएगा, काम करने वाला दामाद तलाशे हैं बेचारे, रोजगार वाला तलाशे हैं, जब ना 6-6 महीना रहता है। मौलाना रेहान रजा साहब कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये जो 6-6 महीना ससुराल रहता है इसका नाम कितने दाने पर लिखा होगा? मैंने कहा माफ कीजिएगा, इसका नाम दाने दाने पे नहीं, इसका नाम तो बोरे बोरे पे लिखा हुआ है। जब बोरा खत्म होगा तब ना ससुराल छोड़ कर जाएगा। हजरात तो आज तो नौजवानों का ये हाल है। लेकिन मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा, ये नौजवानों, जन्नत के लिए बनैला कबूतर की तरह किसी मौलवी के पीछे पीछे मत फिरो। जन्नत किसी मौलवी के बाप की जागीर नहीं है जो पट्टा काट के लिख के तुम्हें दे देगा। अगर जन्नत मौलवी के बस की बात होती तो मौलवी पागल है जो तुमको देगा।
अकेले खुद नहीं पूरी जन्नत रख लेगा जो तुमको देगा? बोलो, अरे बोलो भाई, कोई अपनी जमीन नहीं देता है तो मौलवी जन्नत दे देगा? कभी नहीं देगा। और यहां की मस्जिदों की नमाज की बात नहीं करता हूं, चलो खाने काबा में और पूरी जिंदगी खाने काबा में सर सजदे में सर रख के रगड़ रगड़ के सर फोड़ के मर जाओ। कसम खुदा की, अगर तेरी मां तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे दुखी है, तूने अपनी मां को सताया है, अगर तूने अपनी मां का दिल दुखाया है, अगर तेरी मां के आंखों से आंसू निकले हैं और तेरी मां तुझसे नाराज है, तो याद रख पूरी जिंदगी काबे का सजदा मुंह पे मार दिया जाएगा। जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की महक भी ना पा सकोगे। जन्नत के लिए मारे मारे फिरने वालों, अरे जन्नत, तेरी जन्नत खाने काबा के सहन में नहीं गए, तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। मां को राजी कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। मां की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। लेकिन आज का नौजवान जब कमाने लगता है तो अपनी गरीब मां की तरफ मुड़ के नहीं देखता। लेकिन मैं पूछूं, ए नौजवानों, जरा बताओ वो कौन है जिसने तुझे अपना खून पिलाकर अपने पेट में रखकर तुझे खून पिला पिला कर पाला है? वो कौन है जिसने रातों रात भर तेरे पेशाब पे सोते रही और अपने सूखे आंचल पे तुझे सुलाते रही? वो कौन है जो सड़ी से सड़ी गर्मी में रूम के अंदर गर्मी में लड़ते रही, मारे डर के चारपाई बाहर नहीं बिछाती कि मेरे लाल को कहीं जुकाम न हो जाए, मेरे बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए? आज कोई कितना ही मोहब्बत करेगा नौजवानों, मां से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करने वाला है। मां से ज्यादा कोई नहीं प्यार करेगा। अरे दुनिया के बाजार में जो खरीदना हो खरीद लो, आंख चाहिए खरीद लो, फेफड़ा चाहिए खरीद लो, हड्डी चाहिए खरीद लो, लेकिन अब तक कोई ऐसा मार्केट नहीं बना जिस मार्केट में मां का दिल बिका करता हो और कोई मां का दिल खरीदा करता हो। मां का दिल कोई नहीं खरीद सकता। अरे जब बेटा 70 साल का होता है तो मां फख्र के साथ कहती है, ये गमछा दीजिएगा, मां फख्र के साथ कहती है कि मेरे बेटे की उम्र 70 साल की है, मेरे बेटे की उम्र 80 साल की है। हजरात, वो मां है। अगर बेटा आप कमा कर कहीं बाहर से आओ तो अंदाजा कर लेना, नहीं किए हो तो जब कमा कर आप बाहर से आते हो तो बीवी की नजर अटैची पे होती है, भाई की निगाह तेरी जेब पे होती है, बहनों की नजर तेरे सामान पे होती है, पड़ोसियों की नजर तेरे सामान पे होती है, लेकिन माँ की नजर रुपये पैसे पे नहीं, औलाद की सेहत पे होती है। बेटा तू दुबला क्यों हो गया? मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो गया? मेरा बेटा तू इतना पतला क्यों हो गया? माँ मारे खुशी के रोने लगती, मेरा बेटा दुबला हो गया। लोगों, माँ के दिल का कोई जवाब नहीं। और ये भी नोट कर लो कि दुनिया में अगर तुम बार बार किसी मैदान में नाकामयाब हो रहे हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो गुलाम रसूल से दुआओं की भीख मत मांगो, दुआओं की भीख मत मांगो। मुफ्ती उस्मान साहब से दुआ मत कराओ, मौलाना कौसर तबस्सुम से दुआ मत कराओ, कारी फखरुद्दीन साहब से दुआ मत कराओ। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। जो दिल मां के सीने में होगा वो दिल गुलाम रसूल के सीने में नहीं होगा। इसलिए अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर मां जिंदा है तो मां का आंचल पकड़ लो। अगर मां ने मचल के दुआ कर दी तो याद रखो वो दुआ बाबे इजाबत से टकरा के रहेगी, परवरदिगार की बारगाह में वो दुआ मकबूल होकर रहेगी। और जब मां दुआ कर देगी तो कामयाबी भी मिल के रहेगी। इसलिए अब कहते हो कि जब ऐसी बात है तो कोई सबूत भी है, वक्त ही नहीं है, क्या सबूत दूं? लेकिन बस दो एक बात का सबूत ले लीजिए। मां की दुआओं का असर देखोगे तो झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मां बहनों, बहुत गौर से सुनो। हल्ला जो करे तेरी बगल में कोई भी मां बहन तो उसको समझाओ
खुदा के लिए चुप रहो। ए मेरी मां बहनों, अगर तेरा बेटा नादानी में अगर तुझे तकलीफ दे तो खुदा के लिए बद्दुआ मत करना, इसलिए कि अगर तू बद्दुआ कर देगी तो तेरा लाल कहीं का नहीं रहेगा। अगर तू बद्दुआ कर देगी तो तेरे बेटे की जिंदगी अधीरज हो जाएगी। इसलिए मेरी मां बहनों, बद्दुआ मत करना। तेरी औलाद है, तेरा खून है। नादानी में अगर तुझे तकलीफ दे दिया है तो बद्दुआ मत देना, दुआ जरूर देना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जरा जोर से बोल दो, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को अगर नाराज कर दो तो फाटक नहीं खुलेगा, मां को नाराज कर दो तो अंदर नहीं जा सकते। इसलिए बाप को भी राजी रखो, मां को भी राजी रखो। और वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके मां बाप का साया बाकी। हम सारे लोग उलमाए कराम मिलकर दुआ करते हैं, परवरदिगारा जिनके मां बाप दुनिया से चले गए हैं, रब्बे जुल जलाल उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। परवरदिगारा उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। आओ नौजवानों, मुलाहिजा करो, मां की दुआओं का असर देखो। मेरी मां बहनों, गौर से सुनो। कोई आदमी उठा बैठी ना करे, भैया थोड़ी देर। आप उठा बैठी करेंगे तो मैं समझूंगा कि अब मैं तकरीर खत्म करूं। खत्म करूं क्या? नहीं, बोलिए खत्म कर दूं? तो जरा दिल से सुनिए, तबीयत से। इतना कुछ कहने के बावजूद भी बहुत से लोग अभी बाजार में टहल रहे हैं, जैसे लग रहा है वो बाजार ही करने के लिए आए हैं। अरे शिवहर के बाजार में तो रहते ही हो यार, बाजार में तो पूरी जिंदगी गुजारते हो, बज़्म अहमद मुख्तार में तो एक रात गुजार लो। मां की दुआओं का असर देखना चाहते हो? आओ नौजवानों, एक नौजवान अपनी मां की खिदमत कैसे कर रहा है देख लो। एक बार सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे परवरदिगार कल क़यामत के दिन मेरे साथ किसका हश्र फरमाएगा? जवाब मिला, एक कलीमुल्लाह, एक नौजवान है, उसी का हश्र तुम्हारे साथ होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पैगंबर है ना? बोलो पैगंबर हैं कि नहीं? यकीनन किसी ऐरे गैरे नथु खैरे का हश्र नहीं होगा, उसी का होगा जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने इल्तिजा की, परवरदिगार मैं जरा उस नौजवान को देख लूं, वो कौन नौजवान है जिसका हश्र मेरे साथ होगा। हुक्म हुआ है कलीम जाओ फला मकाम पे है, देख लो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह है तो देखते क्या है, एक नौजवान गोश्त की दुकान खोले, गोश्त काट कर बेच रहा है। सुबह से शाम हो गई, कोई इबादत नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई जिक्र अज़कार नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई सजदा भी नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया, कोई इबादत नहीं किया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह परेशान, मेरे माबूद इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा? इसने तो अब तक कोई इबादत भी नहीं की, इसने तो अब तक कोई तेरा सजदा भी नहीं किया, इसने तो अब तक कोई जिक्र अज़कार की महफिल भी नहीं सजाई। ए मेरे परवरदिगार, आखिर इसकी कौन सी इबादत तुझे इस कदर पसंद है कि इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा? नौजवान दुकान बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा, आबो चलो आज की रात इसके घर में रुक के देखूं, रात को हो सकता है इबादत करता हो, वो इबादत परवरदिगार को बहुत पसंद हो। चलो इसके घर चलता हूं, चल के देखता हूं। सैयदना नौजवान जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, ए बेटे जरा रुक जा, देख मैं इस शहर में मैं मुसाफिर हूं, यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, यहां मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। अगर एक रात तुम अपने यहां मुझे रहने का मौका दे दो, एक रात ठहरने का मौका दे दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नौजवान नबी का चेहरा देखकर फड़क उठा। नौजवान आगे बढ़कर अर्ज करता, ए जनाब मेरे घर को आप अपना घर समझ कर चली गए, बड़ी खुशी की बात होगी। नौजवान सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को लाया, बाहर सैबान में बैठा दिया, मकान के अंदर गया, निकल के बाहर आया। आने के बाद नौजवान अर्ज करता, ए जनाब अब आप खाना भी खाएंगे या बाद में खाएंगे? अगर अब भी खाएंगे तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाएंगे तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा, हो ना हो इसी बीच में इबादत करता हो, इसलिए पहले इस राज को जान लेना चाहिए कि अब भी खाऊंगा तो अकेले, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ, इसमें कौन सी राज की बात है? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, अजीजम ये मैंने नहीं समझा, जरा ये तो बता दो, अब
ابھی کھاؤں گا تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اتنا سننا تھا۔ نوجوان کی آنکھیں برسنے لگی، نوجوان ہچکیاں لے کر رونے لگا، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، عرض کرتا ہے جناب میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی، میری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بیٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھلتا ہوں، روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتا ہوں، شوربے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں، جب میری ماں کھا لیتی ہے تب اس کے بعد میں کھاتا ہوں، اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بیٹے ماں جب اتنی عمر دراز ہے تو ماں سے اجازت لے لو، میں بھی چل کر تیری ماں سے مل لوں۔ ماں نے اجازت دے دی، موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ نوجوان بڑی محبت سے اپنی ماں کو اپنی گود میں بیٹھا لا، اپنی ماں کا چہرہ دھلا، اپنی ماں کا چہرہ دھل کر روٹیاں سالن میں ڈبویا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلایا۔ جب ماں کھانا کھا لی، بیٹے نے ماں کا چہرہ دھل کر جب بستر پہ لیٹا دیگا، ماں فرماتی بیٹے مہمان کو بھی کھلا دو۔ ہاں امی جان کھلا دیتا ہوں۔ بیٹے چراغ بجھا دو، امی جان چراغ بجھا دیگا۔ ماں فرماتی چراغ بجھا دیگا، ہاں بیٹا ہاں امی جان چراغ بجھا دیگا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا اور ماں آنچل پھیلا کر اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، میرے پروردگار میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، تیری ایک بے بس بندی ہوں، اے میرے پروردگار میں